A very good morning, dear children. Welcome back to your SST class. Children, you know, in SST, we are studying chapter 12, our history, right? And in our last video, I had explained you the timeline through a riddle. अच्छे से मैंने आपको timeline explain की है. I have explained you BCE and CE, before Common Era and Common Era, right? And children, you know, our history is divided into three periods: the ancient period, the medieval period and the modern period. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एंशिएंट पीरियड एक्सप्लेन किया है. यस, एंड टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मिडीवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड. ओके, बट बिफोर दैट लेट्स रिवाइज अबाउट द एंशिएंट पीरियड. एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको समझाया था, कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइंस फ्रॉम योर बुक. ओके, there was a very advanced civilization near the Indus River, which is now in Pakistan, in about 2500 BCE, and this was the Indus Valley civilization. It is also called the Harappan civilization. Harappa and Mohenjo-daro were two important cities found in this region. The Indus Valley civilization is stretched from northwestern India to present-day Pakistan. Around 1500 BCE, some tribes came from Central Asia to India and they were called the Indo-Aryans. The Aryans grew crops and domesticated animals. And as the Vedas were written at this time, this period is also called the Vedic Age. Magadha became one of the most powerful kingdoms in North India. In 326 BCE, Alexander, the ruler of Macedonia in Greece, attacked India. He died on his way home in 323 BCE. Then in 321 BCE, Chandragupta Maurya became the ruler of Magadha. He founded a new empire, the Mauryan Empire. After the Mauryas, the Guptas ruled over India in the 4th and 5th centuries CE. And this period, the Gupta period, is called the golden age of ancient India. Okay, तो मैंने आपको ancient period के कुछ important points एक बार फिर revise करा दिए हैं. Now let's start about the medieval period. The spelling of medieval is MEDIEVAL. कुछ स्टूडेंट्स इसकी स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हैं. प्लीज़ अच्छे से स्पेलिंग लिखिए, लर्न कीजिए स्पेलिंग को, फिर बहुत केयरफुल स्पेलिंग लिखिए. ठीक है, स्पेलिंग ऑफ मिडीवल इज MEDIEVAL, मिडीवल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. By the end of the 7th century CE, the rulers of Central Asia became very powerful. By the end of 7th century के अंत तक the rulers of Central Asia became very powerful. Central Asia के जो rulers थे वो बहुत powerful हो गए. They were attracted to the wealth of the Indian kingdoms. वो attracted थे Indian kingdoms की जो wealth थी, richness थी, उसकी तरफ. Then Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori attacked the kingdoms in India and looted their riches. महमूद ऑफ गजनी ने और मोहम्मद गौरी ने अटैक किया इंडिया पर, इंडियन किंगडम्स पर, और यहाँ की जो रिचनेस थी, वेल्थ थी, वो हड़प ली. In 1206 CE, Qutbuddin Aibak became the ruler of North India. He founded a new empire called the Delhi Sultanate. In 1206 CE में कुतुबुद्दीन ऐबक नॉर्थ इंडिया के रूलर बने और उन्होंने एक न्यू एम्पायर बनाया, दैट इज द दिल्ली सल्तनत. ओके, एंड ही वाज फॉलोड बाय पावरफुल रूलर्स लाइक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी. और उनके बाद ये रूलर्स रहे उन्हीं की एम्पायर में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी. When the Delhi Sultanate declined, North India was divided into many small kingdoms. जब दिल्ली सल्तनत को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया है वो छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे राज्यों में बट गया.
देन बाबर केम टू इंडिया इन 1526 CE। 1526 CE में बाबर इंडिया आया एंड ही डिफीटेड दीज किंगडम्स इन बैटल। और युद्ध में इन जो छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उन्हें बाबर ने हरा दिया। एंड लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, और मुगल शासन शुरू किया। ठीक है, बाबर ने। आफ्टर बाबर हिज सन हुमायूं बिकेम द मुगल एम्परर। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं मुगल एम्परर बने, मुगल शासक बने। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर इन 1556 CE। और हुमायूं के बेटे अकबर के द्वारा वो उन्होंने सफलता प्राप्त की 1556 CE में। ओके, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर। He conquered a number of kingdoms and brought the greater part of India under his control। बहुत महान शासक थे अकबर, और उन्होंने बहुत सारे राज्यों पर सफलता प्राप्त की और अपने कंट्रोल में लाए, अपना शासन किया उन्होंने। Then what happened? Then after अकबर came जहांगीर and then शाहजहां। ठीक है, अकबर के बाद कौन कौन आए? जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, सबसे पहले कौन आए? बाबर आए इंडिया में। उन्होंने बहुत सारे राज्यों पे के साथ मतलब उन्हें युद्ध के दौरान जीत लिया। फिर उन्होंने मुगल एम्पायर शुरू किया। ओके, मुगल रूल शुरू किया। बाबर के बाद बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बाद हुमायूं के बेटे अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, देन शाहजहां। शाहजहां बिल्ट द फेमस मॉन्यूमेंट द ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, आगरा में है, जो कि ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन औरंगजेब। और फिर उन्हें किसके द्वारा सफलता प्राप्त हुई? वो किसके द्वारा सफल हुए? अपने बेटे औरंगजेब। ठीक है, एंड औरंगजेब वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। और औरंगजेब जो मुगल डायनेस्टी थी, एक मुगल राजवंश जो था, मतलब एक ही फैमिली से एक के बाद जो शासन कर रहे थे, उनमें सबसे जो लास्ट थे वो औरंगजेब थे। ठीक है, द रूलर्स हु केम आफ्टर औरंगजेब लॉस्ट देयर पावर ग्रेजुअली। और जो भी औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब के बाद जिन लोगों ने शासन किया, वो उन्होंने अपनी पावर जो है वो धीरे धीरे खो दी। अराउंड दिस टाइम इन 18th century CE, other rulers such as the Rajputs, the Marathas, the Sikhs and the state of Mysore became powerful। और लगभग 18th century CE में अराउंड दिस टाइम जो अन्य शासक थे वो पावरफुल हो गए। कौन? जैसे कि राजपूत, जैसे मराठा, सिख और मैसूर के जो राज्य थे, ये सब पावर में आ गए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मिडिवल पीरियड। ये सब मिडिवल पीरियड के बारे में था। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 7th century CE द रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिकेम वेरी पावरफुल। In 1206 CE, Qutbuddin Aibak became the ruler of North India. He founded a new empire called the Delhi Sultanate. Right? Babur came to India in 1526 CE and defeated Indian kingdoms in battle, laying the foundation of Mughal rule in India. After Babur, his son Humayun became the Mughal emperor. He was succeeded by his son Akbar in 1556 CE. After Akbar came Jahangir and then Shah Jahan, and Aurangzeb was the last important ruler of the Mughal dynasty, right? And then in around 18th century CE, some other rulers such as the Rajputs, the Marathas, the Sikhs and the state of Mysore became powerful. This is all about the medieval period. Now let's study about the modern period. अब हम पढ़ेंगे modern period के बारे में. Okay? During the Mughal period, European trading companies had started coming to India. जब मुगल पीरियड चल रहा था तो उसी दौरान यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो कि व्यापार करती थी, वो यूरोपियन जो कंपनी थी काफ़ी सारी, उन्होंने इंडिया में आना शुरू कर दिया. जैसे कि फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, इन सब ने आना शुरू कर दिया इंडिया में. ठीक है. The decline of Mughal rule helped these companies to become more powerful. और जैसे जैसे मुगल शासन जो है वो कमज़ोर पड़ा या वो ख़त्म होने के कगार पे जब था,
उस टाइम पर इन कंपनीज को पावर में आने के लिए काफ़ी हेल्प मिली। ठीक है, ये कंपनीज जो थी ये पावर में आ गई, पावरफुल हो गई। दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर टू गेन मोर पावर। और ये जो कंपनीज थी, जो ब्रिटिश थे, ये पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, इन लोगों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी ज़्यादा पावर लेने के लिए। द फ्रेंच, द पोर्तुगीज एंड द डच वर फाइनली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। और किसने हरा दिया? फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड डच को। इन 3 कंपनीज को ब्रिटिश ने हरा दिया। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड? In 1757 CE, the British defeated the Nawab of Bengal, Sirajud-Dowla, and became the rulers of Bengal. 1757 CE में ब्रिटिश ने बंगाल के रूलर को, बंगाल के नवाब को हरा दिया, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रिटिश बंगाल के रूलर्स बन गए। The British, who had come to India as traders, now gradually started taking part in the administration of the country. ब्रिटिश जो कि सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आए थे इंडिया में, धीरे धीरे उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया, उसमें पार्ट लेना शुरू कर दिया। They soon brought almost the whole of India अंडर देयर कंट्रोल। और धीरे धीरे उन्होंने जो पूरा हमारा इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। द ब्रिटिश ब्रॉट न्यू आइडियाज टू अवर कंट्री, दे बिल्ट रोड्स एंड रेलवे लाइंस। ब्रिटिश ने न्यू आइडियाज़ दी हमारी कंट्री को, और रोड्स बनाए, रेलवे लाइंस दी, ये सब ब्रिटिश ने किया। हाउएवर द ब्रिटिश ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड द पीपल ऑफ इंडिया विच मेड देम वेरी अनहैप्पी। और क्या किया ब्रिटिश ने? ब्रिटिश ने इंडियन पीपल को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू किया, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उनको मजबूर करना शुरू किया, ठीक है, अपना काम कराने के लिए। ठीक है, और इससे जो इंडियंस थे दे वर वेरी अनहैप्पी, वो बहुत अनहैप्पी थे। देन इन 1857 देयर वॉज अ ग्रेट रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसके बाद इंडियंस ने 1857 में ब्रिटिश के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट किया, एक विद्रोह किया, एक वायलेंट युद्ध किया। वो उनके लिए विद्रोह में आ गए कि उन्हें ब्रिटिश रूल नहीं फॉलो करना है। बट दिस रिवॉल्ट वॉज क्रश्ड एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड बिगेन टू रूल द इंडियन एम्पायर। लेकिन ये सफल नहीं हुआ रिवॉल्ट, और क्या हुआ? इंग्लैंड की जो क्वीन थी उन्होंने इंडियन एम्पायर पर शासन करना शुरू कर दिया। Many educated Indians formed political organizations to free India from British rule. बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिससे कि ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल सके इंडियंस को, क्योंकि वो बहुत परेशान करते थे, बहुत शोषण किया करते थे इंडियंस का, जो ब्रिटिश थे। तो जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने संस्थाएं बनाई, कुछ इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जिससे कि ब्रिटिश रूल से उन्हें फ्रीडम मिल सके। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उस पार्टी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छे से नेतृत्व किया जिससे कि फ्रीडम मिल सके। जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत मेहनत की। महात्मा गांधी वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत की गई वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। ही वॉज द पॉपुलर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स टू फोर्स द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। उन्होंने बहुत तरह के आंदोलन किए, बहुत तरह से कोशिशें की, मेहनत की जिससे कि ब्रिटिश रूल से इंडियंस को फ्रीडम मिल सके। ही यूज्ड peaceful methods of protest such as satyagraha which was based on the principles of truth and non-violence.
उन्होंने सत्याग्रह किया, उन्होंने इस तरह से प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, ठीक है। प्रदर्शन करने का उनका जो तरीका था वो किन प्रिंसिपल्स पे डिपेंड था? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, ठीक है। तो सत्याग्रह किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जिसके सिंपल से जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, वो थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड द लॉस ऑफ मैनी लाइव्स, इंडिया फाइनली बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल ऑन 15 अगस्त 1947। बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत लोगों की जिंदगियां खत्म होने के बाद, बहुत लोगों की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, ठीक है। फ्रीडम मिली इंडिया को फाइनली, किससे? फॉरेन रूल से और ब्रिटिश से। कब मिली? 15 अगस्त 1947। आज भी हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त में, राइट। हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 में 15 अगस्त में। आज आपको पता चला, वैसे आप सभी को पता ही होगा पहले से, कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। देखा कितनी मेहनत के बाद हमारी हिस्ट्री आपने पढ़ ली है, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, कब किसने शासन किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर ब्रिटिश ने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया इंडियंस को, किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हुआ, किस तरह से उन्हें परेशान किया गया, और इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स और जो प्रोटेस्ट किया गया, बहुत तरह के मेहनत की गई, प्रदर्शन किया गया ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ताकि इंडियंस फ्रीली जी सके, फ्रीडम के साथ रह सके, और फाइनली फ्रीडम मिली 15 अगस्त 1947 में। इट्स ऑल अबाउट आवर हिस्ट्री एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इसके बाद मैं आप लोगों को चैप्टर पेज वाइज रीड कराऊंगी, और कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, सिर्फ उन्हें ही हमें हाईलाइट करना है और उन्हें ही हमें लर्न करना है, और हमारे पास हमारा पूरा हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड होगा, एक समरी होगी, ताकि आपको ये याद रहे और आगे भी आप इजीली आगे भी पढ़ सकें, हिस्ट्री को समझ सकें, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क रिलेटेड टू दिस वीडियो. Very small homework, only 4 questions I am giving. Question number 1. Who founded the Delhi Sultanate and when? Delhi Sultanate किसने फाउंड की थी एंड कब? Question 2. Who founded Mughal rule in India? मुगल रूल किसने फाउंड किया था इंडिया में, किसने शुरू किया था? Question 3. Who defeated सिराजुद्दौला and when? सिराजुद्दौला को किसने डिफीट किया था एंड कब? क्वेश्चन 4. व्हाट वाज गांधी जीज मेथड ऑफ प्रोटेस्ट? गांधी जी का जो मेथड था प्रोटेस्ट करने का वो क्या था, क्या तरीके थे, ठीक है। और आपको ये सेंटेंसेस में लिखने हैं आंसर्स, वन वर्ड में नहीं लिखने हैं, जैसे लाइक हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत एंड व्हाई, सॉरी एंड व्हेन, तो आपको ये पूरा एक आंसर लिखना है, ठीक है। जस्ट लाइक इन 1206 CE कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड दिल्ली सल्तनत, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत इन 1206 CE. ओके, तो इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस में आंसर लिखना है. थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे.